of sorting, separation of substances. So guys, last time we have studied till winnowing. So now, today we will start the further reading of this chapter through my slides. So today we will start from sieving. So now let's start. Yes. Now first I will give the introduction of sieving now. Wait for a minute. Yes. Sometimes we prepare dish with flour. So for that we need to remove harmful impurities from the flour so that it cannot come in our food. So for that what we do, we use a sieve obviously. अब जब हम क्या बोलते हैं, और एन एग्जांपल आपका जो फ्लोर होता है, ठीक है, तो आपके फ्लोर में आपकी जो मम्मी होती है वो आप देखना वो छानती होगी किसी चीज से, तो उसको हम कहते हैं कि फिर आप देखना कि जो हमारा जो आटा होता है, हमारा जो फ्लोर होता है वो एक साइड निकल जाता है, ओके, और उसके जो ऊपर होता है वो जो नॉन यूजफुल इम्प्योरिटीज होती है. देन वी पोर द फ्लोर इनटू इट. वेट फॉर अ मिनट. Yes. Then we pour the flour into it. We pour obviously. Sieving. Yes. Sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of it, whereas the bigger particles, which are of no use, will left on the sieve post. Sieving is used when materials are of different sizes. For example, sieve stand. Okay. Now, I hope कि आपको समझ आ गया होगा. मेरे को समझाने की कोई जरूरत नहीं होगी सीविंग के लिए. Okay guys, now wait for a minute. Wait for a minute guys, please. Let me. Now guys, this is our today's topic. So now today we will learn methods of separation of solids. हमने देखो guys क्या बोलते हैं मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ लिक्विड्स. हमने सॉलिड्स का तो देख ही लिया, ठीक है. अब हम लिक्विड का देखेंगे कि लिक्विड्स को कैसे सेपरेट करा जाता है. So let me move to the next slide. Introduction. Now yes. Let me on the spotlight for that. There are three ways to separate liquid: sedimentation, decantation, filtration. तो ऐसा सोच रहे होंगे कि यार ये तो थ्री वेज तो होती ही नहीं है, बहुत सारी वेज होती है. फॉर एग्जांपल डिस्टिलेशन और भी बहुत सारी वेज होती है. पर गाइस आपके जो सिलेबस में यही तीन चीजें हैं. तो नाउ लेट्स रीड. Sometimes it may not be possible to separate components of a mixture by winnowing and hand picking. For example, there may be lighter impurities like dust or soil particles in rice or pulses. How are such impurities be separated from rice or pulses? Rice or pulses are usually washed before cooking. When you add water to these, the impurities like dust particles be separated. तो गाइस इसमें हमें कहा जा रहा है कि फॉर एन एग्जांपल मैं दे दूं आपको वाटर और सैंड का, आपको उनको सेपरेट करना है, तो आप बोल दोगे क्या कि हम हैंड पिकिंग से कर लेंगे? आप बोल दोगे कि हम विनोइंग से कर लेंगे? नो ना. So that's why these three things are used. So for rice and pulses, before cooking, they are usually washed. We will add water और जो उसके अंदर जो गंदगी होती है वो बाहर निकल आती है. Okay. Now let's move to next slide. Yes, sedimentation. First we will read sedimentation. Wait for no, sorry guys, it is not sedimentation. Please wait for a minute. ये जो गाइस सेडिमेंटेशन है इसको आप भूल जाए, कुछ भी नहीं है ये. ओके गाइस,
प्लीज आई होप इसको आप बोल जाओ मेरे से गलती से लिखाई में आ गया गाइस, प्लीज सॉरी फॉर दैट। ये तो मैं आपको एक्टिविटी बता रहा हूँ, अभी तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। सेडिमेंटेशन को आप छोड़ दीजिए, मेरे से गलती से लिखाई में आ गया। नाउ लेट्स रीड द एक्टिविटी 1। यस, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर और stand in it. Now, after 10 minutes, you observe that sand is completely sank. Then pour water without disturbing the impurities of sand in another glass. And now, if you want a clear water, take a funnel and pour the water in it now. Okay, guys. Now, guys, इसमें हमसे ये कहा जा रहा है कि फॉर एन एग्जाम्पल आप मिक्सचर ऑफ सैंड और वाटर का ले लीजिए। तो आपने प्रैक्टिकली देखा होगा कि जब आप सैंड को वाटर में डालोगे तो वो नीचे सिंक हो जाती है, ठीक है। फिर आप करते क्या होंगे, इस एक्टिविटी में बताया है कि जो सैंड की जो इम्प्योरिटीज होते हैं उनको बिना डिस्टर्ब करे, उनको बिना हिलाए डोले धीरे से पानी डाल लेते हैं। Isn't it? We do. अब हमको एकदम क्लियर वाटर चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल क्या बोलते हैं, आप जब पानी डालते हो तो थोड़ी सी तो मिट्टी तो आती होगी। अब इसमें पूछ रहे हैं इफ यू वांट अ क्लियर वाटर, क्या अगर आपको क्लियर वाटर चाहिए तो यू हैव टू टेक अ फनल एंड pour the water in it. Now observe what you will see. Okay, not funnel. Can anyone tell? मैंने इसको जानबूझ से दिखाया कि कोई बता सकता है और क्या क्या चीज होता है, फनल एंड filter paper. Okay, now let me write. तो पीडीएफ में करना। Now guys, okay, we use a filter paper. तो हम जब फिल्टर पेपर में डालेंगे, आपने जैसे कि देखा ही होगा जो फिल्टर पेपर के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है। तो उनसे क्या होगा, ये जो सैंड की जो इम्प्योरिटीज होती हैं ये वहीं रुक जाएंगी। ओके, और जो वाटर है हमारा आसानी से नीचे आ जाएगा। ओके, so now let's move to the next slide. Now in this activity you have seen the separation of sand and water by 3 methods. The sand will sink in water. जो हमने देखा था कि जो sand है हमारी sink हो गई, तो उसको क्या बोलते हैं हम, sedimentation. Pouring the water into another glass without disturbing the impurities of sand called sediment. तो उसको हम कहते हैं sedimentation. Filtering the water in another glass using a funnel called filtration. I hope कि आपको समझ आ गया होगा. Now let's read sedimentation. What is sedimentation? Now in that activity you have seen that the sand is sinking in the water. This is because the sand is heavier than the water. So the separation of insoluble solids from liquid by allowing the solids to settle down is sedimentation. Do you know what we call the insoluble solids? They are called as sediments. Means no use impurities of the material like sand. We can also separate the rice from sand or dirt particles by this method and from pulses also. Okay, तो guys इसमें देखो sedimentation में वो बहुत सिंपल सा है कि मैं आपको मैं वर्ड्स में बता देता हूँ कि the separation of insoluble solids from a liquid by allowing the solids to settle down is called sedimentation. The insoluble substance which settle down are called sediments. अब इसका एग्जाम्पल दे देते हैं, क्लीनिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस इन वाटर। अब कोई बताएगा इन दोनों में सेडिमेंट क्या है, आप तो बोलोगे कि जो राइस के अंदर से जो गंदगी निकलेगी वो सेडिमेंट है। नो, here the sediments are rice and pulses. Remember it. Okay, now let's move to decantation.
In activity 1, we have seen that we pour the water without disturbing the sediments into another glass. So if sand is there in water, what is left in the glass? Water. So what we call that water which is above the sediments, we called it supernatant. तो गाइस जो हमारा जो वाटर होता है, हमारा जो लिक्विड होता है, वो जो सेडिमेंट के ऊपर होता है. फॉर एन एग्जांपल अपर, वो मैंने जो राइस का लिया था एग्जांपल, तो राइस का क्या, सैंड का लिया था. तो सैंड तो सेटल हो गई, तो उसके जो ऊपर का जो पानी है उसको हम कहते हैं supernatant. Do you know? We can also separate the mixture of sand and water by sedimentation and decantation. ये जो हमारा जो सेपरेशन है ऑयल और सैंड और वाटर का, उसको हम सेडिमेंटेशन से भी कर सकते हैं और डिकेंटेशन से भी कर सकते हैं. ये नहीं कि सेडिमेंटेशन से कर दिया और डिकेंटेशन रहने दिया, नो, ये दोनों से ही होगी. नाउ सी द सेडिमेंटेशन एक्टिविटी and see the decantation activity. Separating a mixture of sand and water uses sedimentation and decantation. Also, we can separate the mixture of oil and water by decantation. Okay. अब मैं guys simple सा बता देता हूँ decantation का. The process of transferring the liquid after sedimentation without disturbing the sediment is called decantation. The liquid above the sediment is called supernatant. We can also separate the mixture of sand and water by this method. भाई simple सा है यार, कोई भी आपको कुछ हेडक लेने की जरूरत नहीं है. नो, इट इज वेरी सिंपल. नाउ फिल्ट्रेशन. इन एक्टिविटी 1, इन लास्ट वी पोर वाटर इनटू अ फनल एंड व्हाट विल हैपन गाइस. एक्टिविटी 1 में हमने जो वाटर है उसको फिल्टर फनल और फिल्टर, हमने फनल के अंदर फिल्टर पेपर लगा दिया था, फिर हमने डाला था. We will get clear water by filtering. Do you know? Filtration is done by funnel है ना, filter paper. तो गाइस जो हमारी filtration है वो या तो funnel से होती है, ओके, और या तो वो filter paper से होती है. और filter paper is such a thing which has fine pores. उसके अंदर छोटे छोटे holes होते हैं, small holes in it. ना मैं आपको zoom करके दिखाता हूँ. तो देखो यार, दिख रहा है आपको? ये मैं मार्क करता हूँ एक बार. ये जो है पूरा, ये है आपका फनल, और ये जो इसके अंदर है वो, सॉरी शायद पिक्चर क्लियर नहीं होगी, ये आपकी बुक से लिया गया है. या ये जो ये फनल है, इसके अंदर आप कुछ ग्रे ग्रे देख रहे होंगे, वो फिल्टर पेपर है. ओके. नाउ filtration is done using a filter or strainer. जो फिल्ट्रेशन है वो या तो फिल्टर से करती है, छन्नी से, और या तो स्ट्रेनर से करती है. फॉर एन एग्जांपल हम टी लीव्स को टी में से सेपरेट कर सकते हैं. रिमूवल ऑफ पल्प फ्रॉम फ्रेश फ्रूट जूस. अब पल्प का मीनिंग बताओ मेरे को क्या होता है, और रियल मीनिंग ऑफ पल्प का क्या मतलब होता है बताओ. मैं फॉर एन एग्जांपल, आप एग्जांपल ले लो नारंगी का. अब नारंगी का आप जूस बनाते हो, ठीक है, तो जूस तो अलग निकल जाता है और उसके जो छिलके आते हैं वो होता है ना, आप समझ गए मेरी बात का, इसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. तो उसको हम कहते हैं पल्प एक्सेट्रा. ऑल्सो इस ऑफ फिल्टर पेपर इज अ कोन शेप. जो हमारा जो फिल्टर पेपर होता है वो यू शेप, ऐसे शेप का होता है. ओके, आई एम ड्रॉइंग इट. ओके, नाउ आई होप कि आपको अभी तक समझ आ गया होगा. नाउ let's read further of filtration. Yes. Do you know which is left on the filter paper? अब guys हम फिल्टर पेपर पे कुछ डालेंगे तो आपको पता है जो ऊपर जो उसके रहेगा उसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड रेसिड्यू. इनसोल्यूबल सॉलिड कॉल्ड रेसिड्यू. और जो क्लियर वाटर निकल जाता है हमारा दूसरे ग्लास में या कहीं पर भगोनी में, आप जहाँ भी निकालोगे सिंपल सा, उसको हम कहेंगे फिल्टरेटर. ओके, ना इसका मैं बता देता हूँ, मैंने इसका एक्सप्लेन नहीं किया था. गाइस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम जो डिकेंटेशन है, हम जो सेडिमेंट्स को डिस्टर्ब करके हम पानी धीरे से डालते हैं ना,
उसको कहते हैं डिकेंटेशन। और फिल्ट्रेशन का तो आपको समझ आ गया होगा। नाउ लेट मी शो यू द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। Now see guys, these are the important points. First is need of separation. हमें separation क्यों चाहिए होती है? First is to remove harmful and unwanted materials from a mixture. To separate useful materials from a mixture. B and C is to separate two useful substances if both are needed separately. Methods of separating solids. हम solids को कैसे separate करते हैं? Now the first is hand picking. Now I will show. You have to write guys in your copy or rough page. See hand picking. Now threshing. गाइस आप सोच रहे होंगे कि ये तो इतना दिखाते ही नहीं है, हम कैसे करें? तो गाइस सिंपल सा है, वीडियो को पॉज करके लिख लो। Now winnowing. I hope it is visible to you and you have understood today's class. Now sieving. I hope कि आपको दिख रहा होगा sieving का। See it. Now methods of separation of liquids. First is sedimentation. guys आपको बड़ा है लिखना है, पर मेरे को भी याद हो गया था, ऐसी कोई बात नहीं है। You can learn it by heart. देखो बस सिंपल से देखो ट्रिक बता रहा हूँ, हमारे टीचर्स ने भी बताई। देखो मैं भी अपने टीचर्स को पहले जो साइंस वाले टीचर थे उनको बोलता था कि मैम मेरे तो मतलब जैसे मेरे एग्जाम से पहले गाइस क्या होता था, मेरे क्या टेंशन होने लग जाती थी। ठीक है, टेंशन होने लग जाती थी तो मैम ने बोला था कि मेरे को जो मेरी साइंस होती है ना उसको आप प्रैक्टिकल जीवन जियो, उसको आप प्रैक्टिकली ले। अब जैसे आप ठान लोगे ना कि हाँ इसको हम याद कर सकते हैं तो आप याद ही करोगे। अब मेरे अंदर आ गया कि मैं इसको कितना भी बड़ा होए याद ही करूंगा। ओके, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। डिकेंटेशन एक बार लाइफ में कोई चीज बड़ी नहीं होती, ये और ध्यान रखना यार तुम लोग, सबको बोल रहा हूँ मैं, नॉट द class 6 boys. I am saying to everyone. This was said my mother also to me. Now filtration C. Now khatam. So bye bye guys. Please like and subscribe our channel. Goodbye. Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's what they call me.